शुक्राणुधर यानी स्पर्मेटोफोर टेस्टिस द्वारा उत्पन्न स्पर्म्स शुक्राशयी नलिकाओं में संचित रहते हैं। मैथुन क्रिया के समय शुक्राणु इन नलिकाओं यानी सेमिनल वेसिकल से निकलकर स्खलन वहिका यानी इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाते हैं। यहाँ छत्र ग्रंथि की यूट्रिक्युलाe ब्रिवोर्स द्वारा स्रावित पोषण पदार्थ शुक्राणुओं के साथ मिला दिए जाते हैं। अब इनके चारों तरफ यूट्रिकुलर ग्लैंड की ही परिधीय नलिकाओं यानी यूट्रिकुलाe मेजोरिस द्वारा एक आवरण चढ़ा दिया जाता है जो कठोर होकर स्पर्मेटोफोर की सबसे भीतरी परत का निर्माण करते हैं। जैसे ही यह एक स्तरीय स्पर्मेटोफोर इजैकुलेटरी डक्ट में नीचे उतरता है, स्खलन वहिका यानी इजैकुलेटरी डक्ट की ग्रंथिल भित्ति इस पर दूसरी परत का स्रावन कर देती है। अब यह स्पर्मेटोफोर यानी शुक्राणुधर नर जनन छिद्र मेल गोनोपोर द्वारा अधर फेलोमियर्स पर आता है तो फैलिक ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ इस पर छोड़ दिया जाता है जो शुक्राणुधर के तीसरे आवरण का निर्माण करती है। मैथुन क्रिया के समय स्पर्मेटोफोर यानी शुक्राणुधर मादा के जनन वेशम में शुक्र ग्राहक पैपिला पर छोड़ दिया जाता है। मैथुन क्रिया के बाद स्पर्मेटोफोर काफ़ी समय तक शुक्र ग्राहक पैपिला पर चिपका रहता है। इसमें से शुक्राणु शुक्र ग्राहकों में भर जाते हैं तथा खाली शुक्राणुधर को जनन वेशम से बाहर गिरा दिया जाता है। During mating, the two-layered spermatophore is attached to the spermathecal aperture of the female, and then the secretion of phallic gland is poured over it, which hardens to form the third and outermost layer of spermatophore. Female reproductive organ of cockroach. The female reproductive system of cockroach consists of a pair of ovaries, vagina, genital pouch, collateral gland, spermatheca, and external genitalia. Ovaries. There are two large, light yellow colored ovaries lying laterally in the segment 4, 5, 6 embedded in the fat body. Each ovary is formed of a group of 8 ovarian tubule or ovariole containing a chain of developing ova. An ovariole is made up of an epithelial layer resting on a basement membrane and enclosed externally in a connective tissue coat. An ovariole from in front to backward consists of the following zone. First,
suspensory filament. This suspensory filament is thin, thread-like continuation of connective tissue layer and provides attachment of the ovariole to the dorsal body wall, and thus it serves to suspend the ovariole in the hemocoel. Second, zone of germarium. It follows the terminal filamentous zone and consists of germ cell or oogonia and mature into oocyte and pushed downward. Vitellarium. This zone receives the oocyte from the zone of germarium one by one and constitute the largest part of the ovariole. The oocyte become enclosed in a follicle of epithelium and increase progressively in size towards the posterior end, which give it a beaded appearance. Egg chamber. The vitellarium opens posteriorly into a small, thick, oval egg chamber which contain a large mature ovum at a time. Stalk or pedicel. The egg chamber continue posteriorly into a thin-walled hollow stalk which open into the lateral oviduct. The stalk of all 8 ovariole on one side join to form an oviduct which is lateral, small, with muscular wall. Vagina. Both the lateral oviduct unite to form a broad median common oviduct called vagina. The vagina opens by a female gonopore into genital chamber. Genital pouch. It is a large boat-shaped structure whose floor is formed by the 7th sternite. Roof and side are formed by 8th and 9th sternite. The genital pouch can be divided into a genital chamber into which the vagina opens and an oothecal chamber where ootheca are formed. The genital chamber also receives the accessory reproductive glands. The female gonopore is an aperture in the 8th sternum which lie inside the genital chamber inflicted above the 7th sternite. The 7th sternite is also produced backward into 2 large oval gynovalvular plate or apical lobes. The genital pouch is also referred to as the gynaetrium. Collateral glands. There is a pair of white, much branched collateral gland. The left is much larger than the right. Both these glands continue as collateral duct which join to form a common duct
which open into the dorsal side of the genital chamber. These are the accessory reproductive glands. Spermathecae. These are a pair of club-shaped, unequal sized, one spermatheca being larger than the other structure. Both the spermatheca unite to form a common duct which open into the genital chamber on a small spermathecal papilla. Some workers claim that there is a single spermatheca and it has a lateral cecum. External genitalia. These lie concealed inside the gynaetrium. They consist of an ovipositor formed by two gonapophyses. The ovipositor lies above and behind the gonopore. It is short and has three pair of elongated process. A pair of long, thick arms lying dorsally and enclosing two pair of slender, tapering arms. These two pair of arms arises from a common base and they constitute the posterior gonapophysis. They belong to ninth abdominal segment and are joined to the ninth tergum. The third pair of arms of the ovipositor is large. They converge and meet posteriorly, lying below the posterior gonapophysis and constitute the anterior gonapophysis. These belong to the eighth abdominal segment and are attached to the outer margin of eighth tergum. The ovipositor is used only to conduct the fertilized egg to the oothecal chamber. मादा जनन तंत्र. कॉकरोच का मादा जनन तंत्र अंडाशय, अंडवाहिनियां, योनि, जननवेश्म, कोलेट्रियल ग्लैंड यानी संग्राहक ग्रंथियां व स्पर्माथिका या शुक्रग्राहक व बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनिटेलिया द्वारा निर्मित होता है. अंडाशय यानी ओवरीज. मादा कॉकरोच में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है. ये उदर के चौथे खंड से छठे खंड तक फैले रहते हैं. जिस तरह नर में वृषण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं, ये भी फसाकाय में धसे रहते हैं व सफ़ेद रंग के होते हैं. प्रत्येक अंडाशय 8 लंबी नलिका रूपी अंडाशयकों यानी ओवेरियोल्स का बना होता है. प्रत्येक अंडाशय का सबसे अगला भाग एक पतले धागेनुमा होता है जिसे अवलंबन तंतु यानी सस्पेंसरी फिलामेंट कहते हैं. यह आगे की तरफ पृष्ठ देह भित्ति से जुड़ा रहता है तथा ओवेरियोल को साधे रखता है.
यह एक बहुकेंद्रीय यानी सिंसिशियल संरचना होती है। इसके पीछे वाला भाग जर्मेरियम कहलाता है, जिसमें पंक्तिबद्ध रूप से विकसित हो रहे अंडे पाए जाते हैं। ये एक लड़ी के रूप में पाए जाते हैं। अंडाशयक यानी ओवेरियोल का पिछला भाग फूला हुआ होता है। इसे विटलेरियम कहते हैं। इसमें परिपक्व अंडे की वृद्धि होती है। ओविडक्ट यानी अंडवाहिनियाँ। सभी अंडाशय को पीछे की तरफ एक चौड़ी अंडवाहिनी में खुलते हैं। अंडवाहिनी की दीवार मोटी, पेशीय तथा संकुचनशील होती है। योनि या वेजाइना। दोनों तरफ की अंडवाहिनियाँ यानी ओविडक्ट मिलकर सह अंडवाहिनी या योनि दैट इज वेजाइना का निर्माण करती है। यह 7वें खंड की मध्य रेखा में पाए जाते हैं तथा 8वें खंड के अधर सतह पर मादा जनन छिद्र द्वारा जनन वेश्म में खुलते हैं। जनन वेश्म जेनाइटल एट्रियम। जनन वेश्म का अधर भाग 7वें खंड की स्टर्नम से बनता है। यह चौड़ी व नौकाकार होकर पीछे की तरफ 2 अंडाकार प्लेटों में बटी रहती है। इन्हें गाइनोवल्वुलर प्लेट कहते हैं। 8वें तथा 9वें खंड की स्टर्नम भीतर धंसकर जनन वेश्म का पृष्ठ एवं पश्च भाग बनाते हैं। जनन वेश्म 2 भागों में बटा होता है। अगला भाग जनन कक्ष तथा पिछला भाग ऊथिकल चेंबर कहलाता है। कोलेट्रियल ग्लैंड संग्राहक ग्रंथि। जनन वेश्म में एक जोड़ी अत्यंत शाखित ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें संग्राहक ग्रंथियां कोलेट्रियल ग्लैंड कहते हैं। ये दोनों ग्रंथियां असमान होती हैं। बाई ग्रंथि बड़ी तथा दाहिनी ग्रंथि छोटी होती हैं। बाई ग्रंथि परांध तथा दाहिनी ग्रंथि पारदर्शी होती हैं। दोनों ग्रंथियां अलग अलग छिद्रों द्वारा जनन वेश्म में खुलती है। ये सहायक ग्रंथियां यानी असेसरी ग्लैंड्स होती हैं तथा दोनों ग्रंथियां भिन्न भिन्न पदार्थों का स्रावन करती हैं। शुक्रग्राहक या सेमिनल रिसेप्टिकल या स्पर्माथिका। ये एक जोड़ी छोटी थैलेनुमा संरचना होती है। ये दोनों शुक्रग्राहक संरचना में असमान होती हैं। बायां शुक्रग्राहक बड़ा तथा मुंडाकार होता है,
जबकि दाहिना शुक्रग्राहक पतला व नलिकाकार होता है। दोनों शुक्रग्राहक मिलकर जनन वेश्म में स्थित स्पर्माथिकल पैपिला पर खुलती हैं। इसमें मैथुन क्रिया के समय नर से प्राप्त शुक्राणुओं का संचय होता है। बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जनन वेश्म में काइटिन के बने 3 जोड़े प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें अंड निक्षेपक यानी ओविपोसिटर कहते हैं। ये निषेचित अंडों को नवनिर्माणाधीन अंडकवच में जमाते हैं। ये अंडकवच वेश्म की छत से इसकी गुहा में लटके रहते हैं। कॉप्यूलेशन। कॉकरोच का जनन काल मार्च से सितंबर का होता है। इस काल में मैथुन क्रिया के लिए मादा कॉकरोच नर कॉकरोच को आकर्षित करने के लिए एक पीले रंग के वाष्पशील गंधयुक्त लिंग आकर्षक पदार्थ का स्रवण कर सतह पर छोड़ता है।